use to go to their school. We will continue with part 2 today. So let's begin with chapter number 1. Let's go to school every day, part 2. So kids, let's begin with chapter 1. Let's go to school every day, part 2. Last time we learnt about school van. Now there is a song related to it. So let's recite that song. Let's begin. School bus drives around town, picking up and dropping off and bumping up and down. Turn to the left, turn to the right, the school bus is out of sight. Big, loud and yellow, my bus is really neat. Hop up and take the front seat. Kids, did you enjoy it? Nice song, isn't it? Now you can also sing it. Can you think of a place where none of these vehicles can reach? Are there such places? क्या आप कोई ऐसी जगह के बारे में सोच सकते हो जहाँ पे ये व्हीकल्स पहुँच नहीं सकते? They cannot reach there. क्या कोई ऐसे places है? Yes, there are places where no vehicles can reach, not even a bicycle, such as mountains, forest, है ना? वहाँ पे vehicles नहीं पहुँच सकते. So here we are going to learn about children cross the jungle. Now यहाँ पे कुछ बच्चे हैं वो जंगल क्रॉस करके अपने स्कूल पहुँचते हैं. So let's read about it. We live in Gir forest. We have to go through a thick forest to reach school. It is very silent in jungle that we can hear the sound of different birds and animals. We go to school through the jungle every day. सो किड्स, यहाँ पे ये बच्चे जो है वो गिर फॉरेस्ट में रहते हैं और उन्हें अपने स्कूल पहुँचने के लिए ये थिक फॉरेस्ट से गुज़रना पड़ता है. वो कहते हैं कि जंगल बहुत ही साइलेंट है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स और एनिमल्स की आवाज़ें सुनाई देती है, वो भी डिफरेंट बर्ड्स एंड एनिमल्स. हम रोज़ ये जंगल से पास होते हैं और हमारे स्कूल पहुँचते. दे हैव टू गो थ्रू द जंगल एवरी डे. इंटरेस्टिंग है ना किड्स? Now they are asking which birds and animals can you recognize by their sounds. ऐसे कौन से birds और animals को तुम recognize कर सकते हो उनके sound से? So there are many animals and birds, right? Like cow, buffalo, cats, dogs. Birds like crows, pigeons, parrots, sparrows, cuckoos, etc. So there are many birds and animals, right? You can recognize by their sounds. Now they're asking what care should you take while passing through jungle. हमें क्या care लेना चाहिए जब हम जंगल से पास हो रहे हो? So the very first thing is that there are many animals living in jungle. These animals can attack us because they are wild animals, right? So we have to be very careful. हमें बहुत cautious रहना है. ऑल्सो वाइल यू आर वॉकिंग थ्रू द जंगल, वहाँ के जो पाथवेज है वो कभी स्ट्रेट नहीं होगे रोड की तरह, उसमें बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स होगे, अप एंड डाउन होगे, ट्रीज से सराउंडेड होगे. सो हमें बहुत ध्यान से चलना चाहिए. थर्ड थिंग इज़ कि वहाँ पे बहुत सारे पॉइजनस क्रीचर्स भी रहते हैं जैसे स्नेक्स, राइट? जो हमें जंगल क्रॉस करने के टाइम पे बहुत ही अलर्ट रहना चाहिए जब हम जंगल क्रॉस कर रहे हैं. So above all these things we have to be very alert, okay, while crossing the jungle. Now kids, we saw how students pass through the jungle. Now let's learn about rocky paths. We live on the mountains. The paths are rocky and uneven. For others the path is difficult but we can easily come up and down. We use this path to go to school. So यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग माउंटेन्स में रहते हैं एंड माउंटेन्स के जो पाथ रहते हैं ना वो अनइवन रहते हैं और बहुत रॉकी रहते हैं, वहाँ पे पत्थर बहुत रहते हैं और वहाँ से पास होना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है. लेकिन हम बच्चे हैं ना, हमारा रोज़ का यहाँ से जाना है, इसलिए हम इजीली इस पाथ्स को यूज़ करते हैं स्कूल जाने के लिए. सो अब ये लोग माउंटेन्स थ्रू जाते हैं स्कूल. नाउ मूविंग फर्दर, माई नेम इज़ निधि. I study in 4th standard. I cannot do the work easily like other children. So यहाँ पे एक लड़की निधि बता रही है कि मैं 4th standard में पढ़ती हूँ लेकिन मैं वो सारा काम नहीं कर सकती जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं. ऐसा क्यों? आगे पढ़ते हैं. My legs are not working by birth. At first I found difficult to go to school. My mother was lifting me every day to school.
But now I am coming to school on my own. I have been provided with a wheelchair by which I go regularly to school. So Nidhi is telling कि मुझे पहले स्टार्टिंग में बहुत तकलीफ़ होती थी स्कूल जाने के लिए, बिकॉज़ मेरा जो पैर है वो काम नहीं करते, बचपन से ही मेरे पैर में प्रॉब्लम है. मेरी मम्मी मुझे उठा उठा कर स्कूल लेकर जाती थी, पर अभी मैं अपने आप से ही स्कूल जा सकती हूँ क्योंकि मुझे एक व्हील चेयर प्रोवाइड की है जिससे मैं रेगुलरली स्कूल जा सकती हूँ. सो किड्स, यहाँ पे बात हुई है डिसेबिलिटी की. डिसेबिलिटी मीन्स कि हमें फ़िज़िकली कोई भी बॉडी में प्रॉब्लम हो उसे हम डिसेबल्ड कहते हैं. सो यहाँ पे विच काइंड ऑफ डिफ़िकल्टीज़ फिज़िकली डिसेबल्ड पीपल फेस, ऐसी कौन सी डिफ़िकल्टीज़ है जो फिज़िकली डिसेबल्ड पीपल जो है उन्हें फ़ेस करनी पड़ती है. सो यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी दी है. फर्स्ट वन इज़ हैंडीकैप. जो हैंडीकैप लोग होते हैं उन्हें क्या क्या डिफ़िकल्टी फ़ेस करनी पड़ती है. जैसे हमने अभी देखा, निधि हैंडीकैप थी पैर से और इसीलिए वो कहीं पे भी जा नहीं सकती थी और इसीलिए उसे व्हील चेयर प्रोवाइड करने में आई. सो सिमिलरली जो भी हैंडीकैप लोग रहते हैं वो लोग अपने आप से कहीं पे भी जा नहीं सकते. दे हैव टू टेक अदर पीपल हेल्प or they have to use wheelchair. They find it very difficult to travel by bus or any other vehicle. Next is blind. They need to take other people's help to go wherever they want to and have to use a special stick that has bell. The whole world seems dark for them. They cannot see or appreciate the beauties of nature. So they have to face a lot of difficulty. And the last one is deaf and dumb. Deaf and dumb का मतलब होता है ना वो बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं. Since they can neither speak nor listen, they are not able to convey what they want to say to others, and they cannot understand what others are saying to them. They have to communicate with gestures of hands and eyes. They face a lot of difficulties in the society. So all these difficulties the disabled people face. Now they are asking you to do an activity. Do blindfold on the eyes and go to the ground. What do you feel? Tell. आपको आपकी आँख में पट्टी बांधनी है और आपको ग्राउंड पे जाना है और आपको कैसा फील हो रहा है वो आपको बताना है. Know about another activity from your teacher and experience it. Okay, so this activities you have to do it. Now moving further, except Gujarat, other states also have the kind of paths which we do not have here. Let's see how the students go to school there. So they're saying गुजरात के अलावा भी दूसरे स्टेट्स है जहाँ पे ऐसे पाथ है, अनइवन रॉकी पाथ्स है जो यहाँ पे नहीं है. तो चलो देखते हैं वहाँ के बच्चे कैसे पहुँचते हैं अपने स्कूल. रोप वे, वहाँ के बच्चे रोप वे यूज़ करते हैं. हैव यू एवर बीन टू पावागढ़ और अंबाजी? क्या आप कभी पावागढ़ और अंबाजी टेम्पल्स विज़िट की है आपने? देर इज़ अ रोप वे टू रीच द टेम्पल फ्रॉम डाउन टू अप. वहाँ पे एक रोप वे है जहाँ पे अगर आपको टेम्पल में पहुँचना है डाउन से अप तो वो रोप वे के थ्रू जाना पड़ता है. रोप वे कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रोप ऑफ वायर्स एंड ट्रॉली. रोप वे क्या है? तो रोप वे एक स्ट्रॉन्ग रोप रहता है और उसमें वायर्स और ट्रॉली रहती है. वी सिट इन द ट्रॉली एंड गो अप. गेट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऑफ रोप वे फ्रॉम योर टीचर. सो किड्स, रोप वे है ना वो हाई माउंटेनस एरिया में बिल्ड होता है जहाँ पे रोड्स या रेलवे लाइंस पहुँच नहीं सकती और जहाँ पे वॉकिंग पाथ भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है. सो यहाँ पे गुजरात में रोप वेज है जहाँ पे अंबाजी और पावागढ़ है, राइट. वहाँ पे वो लोग रोप वे के थ्रू टेम्पल्स पहुँचते हैं. और मैनी स्टेट्स हैव दिस काइंड ऑफ वे टू क्रॉस रिवर और वैली. स्कूल चिल्ड्रन ऑल्सो यूज़ दिस. और बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें रिवर और वैली क्रॉस करने के लिए रोप वे यूज़ किया जाता है और स्कूल के बच्चे भी यही रोप वे यूज़ करके अपने स्कूल तक पहुँचते हैं पढ़ने के लिए. किड्स, एरिया जैसे कश्मीर और लद्दाख वहाँ पे भी डीप रिवर्स और वैलीज़ है तो चिल्ड्रन वहाँ पे रोप वे यूज़ करते हैं अपने स्कूल पे पहुँचने के लिए. So kids, here we end our learning of chapter number 1. I hope you have enjoyed learning this chapter. Kids, see you next time. Bye. Take care. Have a wonderful day.